Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 7.3. Determine the nature of the singular point 00 point problem 1 to 4. Now we start the question number 1. X square plus y का square का whole का square is equal to 4a square xy. Now x square plus y का square का whole का square is equal to 4a square xy. We can write as x square plus y का square का whole का square minus 4a square xy is equal to 0. Now we equating the lowest degree term to 0 to get the equation of tangent. Lowest degree term 2 डिग्री और ये होल का 2 4, ये तो 4 डिग्री टर्म है, ये 1 और 1 2, ये 2 डिग्री टर्म है, ये इससे छोटी है तो ये वाली हम टर्म ले लेंगे. माइनस 4a स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 0. नाउ माइनस 4a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0. माइनस 4a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन एक्स वाई इक्वल टू 0 हो सकता है. सो एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 0. जब ये दोनों 0 0 आए, सेम आए, तो उस टाइम हम कहेंगे हैज़ टेंजेंट आर रियल एंड डिस्टेंट. ये रियल भी हैं और डिस्टेंट भी हैं, लेकिन इसका ओरिजिन क्या है? नोड है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. वाई स्क्वेयर इन ब्रैकेट ए स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट बी माइनस एक्स का होल का स्क्वेयर. नाउ वी कैन राइट एज वाई का स्क्वेयर ब्रैकेट ए स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट बी माइनस एक्स का होल का स्क्वेयर equal to 0. Now we multiply this y square with this term, y square a square minus y square x square minus x square. As it is, we open the formula b square plus a square minus 2ab equal to 0. Now this can be as written as it is. Now this x square is multiplied with whole term x square b square minus x4 plus 2x cube b equal to 0. Now we equating the coefficient. Now we equating the lowest degree term to 0 to get the tangent. Therefore lowest degree term is y square a square minus x square into b square. So we can write as y square a square is equal to x square b square. Now we cancel the square. Y is equal to ya is equal to xb. Ya plus minus xb is equal to 0. Therefore ya plus xb is equal to 0 or ya minus xb is equal to 0. So we have two values. Now these tangent are real and distant. जब रियल और डिस्टेंट होंगे तो रीजन इज द नोड. रियल और डिस्टेंट कब होंगे? जब ये दोनों वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ सेम आएंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज़, तब ये क्या कहते हैं? रियल भी होंगे और डिस्टेंट भी होंगे. सो रीजन इज अ नोड. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. एक्स स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर ब्रैकेट 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वेयर एक्स. सो वी कैन राइट एट 2a एक्स का स्क्वेयर प्लस 2a वाई स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई का स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0. नाउ इक्वेट द लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0. Therefore minus b square x is equal to 0. Minus b is not equal to 0 but x is equal to 0. Has tangent are real and cosine. रियल तो है ही है लेकिन कोसाइडेंट है, अब डिस्टेंट नहीं है. जब कोसाइडेंट हो जाएंगे तो सो ओरिजिन इज ऑन कास्प. नाउ ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इंटू वाई का स्क्वेयर. So we can write as a square x square minus a square y square minus x square y square is equal to 0. Now we equating the lowest degree term to 0. Therefore we can write as a square x square minus a square y square is equal to 0. Therefore we can take a square common, a square बाहर ले लिया, a square into bracket x square minus y square is equal to 0. A square cannot be equal to 0, so we can write as x square minus y square is equal to 0. As we can write as x plus y x minus y equal to 0. Therefore x plus y is equal to 0, x minus y equal to 0. So these tangent are real. ये रियल तो आ गए लेकिन अब क्या है? ना ही कोसाइडेंट है ना ही कोसाइडेंट है, तो ये अब क्या हो गए? ये डिस्टेंट हो गए. जब रियल भी हो गए और डिस्टेंट भी हो गए तो ओरिजिन इज अ नोड, लेकिन जब कोसाइडेंट हो जाएंगे तो ओरिजिन इज अ कस्प.
Find the position and nature of the multiplier point on the given curve. Question number 5. X square into bracket x minus y plus y square is equal to 0. F is equal to x square into x minus y plus y square. We can write as f. Now we can open multiply with this x square with this term, so we can add x cube minus x square y plus y square. We can mark as equation number 1. Now we can take a derivative, partial derivative of f of x. We can write as 3x square minus y as it is into 2x plus y का 0 हो गया क्यों we take a partial derivative. Now we take a partial derivative with respect to y, therefore we can write as x cube का derivative 0 minus x square as it is y का 1 plus 2y. Now we take a f double x f double x, यानी हम अब f of x का लिए उसका एक और दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे. 3 to the 6x minus 2y. Now we can take a derivative of f of x y. We can take f of x y. f of x का के साथ y का डेरिवेटिव लेंगे. 3x का स्क्वायर y के लिहाज से लेंगे 0 हो गया माइनस 2 x का 1 और y आ गया माइनस 2 इंटू y का 1 हो गया और x एज इट इज आ गया क्योंकि मल्टीप्लाई और ये बाहर आ गया. नाउ अब वो टेक एफ डबल डैश ऑफ y, therefore we can write as 0 plus 2. We can mark as equation number 1 2 3 4 5 6. Now from second and third, f of x is equal to 0, f of y is equal to 0. Now put f of x is equal to 0, 3x square minus 2xy is equal to 0, minus x square plus 2y is equal to 0. Now we take a value of y from which जिससे भी इजीली हमें वैल्यू मिल जाए. हमें इस 2y is equal to x square, y is equal to x square over 2. We can write as equation number 7. This is equation number 8. Now we putting the value of y in equation number 8. This is 3x square minus 2x. y की जगह हमने पुट किया x square over 2 x square over 2 equal to 0. 3x का स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, दिस विल दिस कैंसल आउट, x into x x क्यूब इक्वल टू 0. वी टेक एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 और 3 इज इक्वल टू एक्स. देयरफॉर x is equal to 0 और x is equal to 3. When x is equal to 0, when x is equal to 0, when x is equal to 0, y is equal to 0 का स्क्वायर ओवर 2 is equal to 0. जब x की वैल्यू 0 होगी तो 0 हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा. सो 0 0 इज अ मल्टीपल पॉइंट. नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 3, जब x 3 होगा हम y की इक्वेशन में 3 x की जगह 3 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9/2. सो 3 9/2 इज अ पॉसिबल मल्टीपल पॉइंट. हैज़ 0 0 सेटिस्फाई f इज इक्वल टू 0. जब 0 0 हम पॉइंट पुट करते हैं f इक्वेशन में, जो पहली फर्स्ट है क्वेश्चन जो हमें क्वेश्चन गिवन है f, उसको हमने नाम दिया f की, उसमें 0 0 पुट करते हैं तो हमारे पास जो f इज इक्वल टू 0 आता है. लेकिन जब हम 3 और 9/2 पुट करते हैं तो आंसर नहीं आता, 0 0 नहीं आता. तो जब नहीं आएगा तो हम कहेंगे सो ओनली मल्टीपल पॉइंट इज 0 0 एट 0 0. अब f ऑफ डबल एक्स जो है डबल डैश एफ डेरिवेटिव 0 इक्वल टू 0 लोगे, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 लोगे, एफ ऑफ डबल वाई इक्वल टू 2 लोगे. ये हमारे पास जो है हमने पीछे से वैल्यूज़ ले ली हैं इनकी. अब हमने इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे इस इक्वेशन इसमें हम पुट कर लेते हैं. इससे पता चल जाएगा, इस इक्वेशन पुट करने से पता चल जाता है कि ये कास्प है, नोड है, ये क्या है जो भी है. एफ ऑफ एक्स वाई का होल का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स एक्स एफ ऑफ वाई वाई. वी कैन टेक द वैल्यूज़. सो द आंसर इज इक्वल टू 0. जब आंसर इक्वल टू 0 आएगा तो हम कहेंगे 0.00 इज अ कस्प. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, y का क्यूब इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस ए एक्स का स्क्वायर. वी कैन राइट एज y क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस ए एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. देयरफॉर f इज रिटन एज दिस टर्म. नाउ वी टेक ऑफ f of x is 0 minus 3x का स्क्वायर माइनस a
a into 2x. Now f of y is equal to 3y का square minus 0 into minus 0. We take a partial derivative with respect to y. We take a partial derivative with respect to x, then again x. The answer is minus 6x minus 2a equal to 4. Now we take up f of double y. Double derivative of y, partial derivative is 6y. Now we take off derivative f of x का y. f of x का जो आया है हमारे पास f of x आया है, उसको y के लिहाज से पार्शियल डिफरेंशिएट किए तो हमारे पास आंसर आ गया 0. Therefore we can mark as 1 2 3 4 5 6. Now f of x is equal to 0, f of y is equal to 0. Therefore we can write as minus 3x का square minus 2ax is equal to 0. 3x का square plus 2ax is equal to 0. X into x, we take x common. 3x plus 2a is equal to 0. X is equal to 3x plus 2a is equal to 0. Therefore we can write as f of y is equal to 3y का square is equal to 0, y square is equal to 0 और y is equal to 0. Now x is equal to 0, x is equal to minus 2/3 और y is equal to 0. x की दो वैल्यू हुई और y की एक वैल्यू हुई है, तो हम कहेंगे सो पॉसिबल मल्टीपल पॉइंट आर 0 0. पहले तो एक 0 0 आया है, फिर हम कहेंगे माइनस 2a और 3 इंटू 0 आया है, फिर हम कहेंगे बट माइनस 2a और 3 इंटू 0 डज नॉट सेटिस्फाई f इज इक्वल टू 0. दिस इक्वेशन में जब हम x और y की वैल्यू जो आई है हमारे पास, ये हमने जब पुट की, ये वाली वैल्यूज पुट की, तो इसने सेटिस्फाई f इज इक्वल टू 0 0 पर इक्वल टू 0 नहीं आई. सो हम कहेंगे ओनली मल्टीपल पॉइंट इज 0 0 एट 0 0. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2a part double derivative with respect to x partial double derivative y with respect to y equal to 0. f of x y is equal to 0. Therefore we can write as f of x y का whole का square f of y equal to 0. 0 का square minus into 2a into 0 is equal to 0. Therefore so 0 0 is a cusp. So 0 0 is a cusp. Equal to answer 0 0 आया तो सही. Now question number 7. x4 plus 5 का cube minus 2x का cube plus 3y का square is equal to 0. We can write as f of equation of f. You can write as mark equation number 1. Now we take f of x partial derivative 4x का cube plus 0 minus 6x square plus 0. Now we take a derivative with respect to y partial derivative. So we can have 0 plus 3y का square minus 0 plus 6y. Now we take up डबल डेरिवेटिव x विद रिस्पेक्ट टू x. एक दफ़ा आपने x लिया, दोबारा उस x का दोबारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लेंगे. 12x का स्क्वायर माइनस 12x. नाउ वी टेक अप y, देन अगेन y डेरिवेटिव 6y प्लस 6. f of x y, we take a derivative of x with respect to y. x partial derivative with respect to y. Therefore the term of y is nothing, so we can write as 0. Now we can mark as 1 2 3 4 5 6 equation. Now put f of x is equal to 0, f of y is equal to 0. Therefore 4x cube minus 6x का square is equal to 0. 3y का square plus 6y equal to 0. 2x का square into 2x minus 3 equal to 0. 3y y plus 2 is equal to 0. यहाँ पे हमने सिर्फ 2x square कॉमन ले लिया, बकाया अंदर छोड़ दिया. यहाँ पे 3y ले लिया, बकाया अंदर चला गया. अब हमारे पास आंसर आ गया x square is equal to 0, x is equal to 3/2 और y is equal to 0 और y is equal to minus 2. So points are 0 0 0 minus 2. 3/2 into 0, 3/2 into minus 2 are possible multiplied point. f of जो f इक्वेशन है वो ये है हमारे पास. पुट 0 और माइनस 2. इस इक्वेशन में हमने x की जगह 0 और y की जगह माइनस 2 पुट किया, तो हमारे पास आंसर आया 0. ठीक है, हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है नॉट इक्वल टू 0. देखो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम कहेंगे बट ओनली 0 0 सेटिस्फाई f इज इक्वल टू 0. लेकिन जब यहाँ पे हम 0 0 पुट करेंगे ऑब्वियसली ये सारा 0 हो जाएगा, 0 इक्वलेंस टू 0 आ जाएगा. वो तो हम कहेंगे 0 0 सेटिस्फाई f इज इक्वल टू 0. लेकिन जब नहीं आएगा तो हम कहेंगे ओनली 0 0 सेटिस्फाई f इज इक्वल टू 0. सो 0 0 इज अ मल्टीपल पॉइंट. अब जब मल्टीपल पॉइंट आगे सेटिस्फाई कर दिए, अब हमने चेक करना है एट 0 0.
कि ये ओरिजिन कौन सा बना रही है, कास्प है, नोड है, जो भी है वो हमने बनाया। तो उसके लिए हमने कहना है एफ डबल एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू 0, एफ ऑफ वाई वाई इक्वल टू 6, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। वी कैन राइट एज इक्वेशन एफ एक्स वाई का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। वी कैन पुटिंग द वैल्यू, द आंसर इज इक्वल टू 0। जब इक्वल टू 0 आएगा तो हम कहेंगे सो 0 0 इज अ कास्प। आप ये सोच रहे होंगे ये ज़ीरो कैसे आ रहा है, एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ वाई वाई इज इक्वल टू 0। ये हमने जो एफ ऑफ एक्स एक्स का डेरिवेटिव है उसमें ये हमने पुट किया है, 0 0 पुट किया तो हमारे पास 0 है। जब इसी तरह हमने ये भी 0 0 0 एफ ऑफ वाई वाई में पुट किया तो 0 एक्स और वाई साथ नहीं थे तो हमारे पास 6 आ गए। इस एक्स वाई में पुट किया तो 0 0 आ गया।